Morning, students. Morning, Morning, sir, ma'am. Morning. All of you ready for the class? Hmm? No response. Shall we start with the class, beta? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yes. Listen, children. We were doing this section आदिवासीज and development. ठीक है ना? ये वाला हम लोग section कर रहे थे. Hope all of you are fine. And beta, please start taking precaution. Okay? COVID has again started showing its after effects. ठीक है ना, कोविड का असर जो है फिर से दिखाई देने लगा है, तो इसलिए जो है Yes, ma'am. हाँ हाँ देखिए केसेस भी ज्यादा होने लगे हैं, तो आप लोगों को प्रिकॉशन लेना होगा, नहीं लेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी. लेट अस स्टार्ट विद द क्लास. ओके, आदिवासीज एंड डेवलपमेंट, एंड वी वर डूइंग दिस सेक्शन. ये सेक्शन हम लोग कर रहे थे. हैव अ लुक चिल्ड्रन. सी हम लोग यहाँ पे थे, देखो. See, this is radically contrary to our image of Adivasis today. ठीक है ना? और should I start with the beginning? चलो शुरू से ही शुरू करते हैं. देखो, Adivasis and development. As you have already read in your history textbook, page number 84. ओके, थोड़ी देर में अजीत सर आपको लिंक भेजेंगे ग्रुप में, आप अटेंडेंस लगा लीजिएगा अपना. Have a look, children. Okay, ma'am. Forests were absolutely crucial to the development of all empires and settled civilizations in India. Metal ores like iron and copper and gold and silver, coal and diamonds, invaluable timber, most medicinal herbs and animal products, wax, lac, honey, and animals themselves, elephants, the mainstay of imperial armies, all came from the forest. In addition, the continuation of life depended heavily on forest that help recharge many of India's rivers and, as is becoming clearer now, crucial to the availability and quality of our air and water. Forests covered the major part of our country till the 19th century, and the Adivasis had a deep knowledge of access to as well as control over most of these vast tracts at least till the middle of 19th century. 19वीं सदी तक आदिवासी जो है ओके उनको जंगलों के बारे में सब कुछ पता था और उनके ऊपर निर्भर थे जितने भी राजा महाराजा थे. ठीक है ना? और अशोक सम्राट के बारे में मैंने आपको बताया था, सम्राट अशोक के बारे में, कि सम्राट अशोक को कैसे जो है ओके गिफ्ट्स मिला करते थे. This meant they were not ruled by large states and empires. Instead, often empires heavily depended on Adivasis for the crucial access to forest resources. आपको पता होगा कैसे अकबर ने जो है अकबर के शासनकाल में आपने देखा होगा कि रानी दुर्गावती, ठीक है ना, ओके, शी बिलोंग टू द होम स्टेट. शी गेव अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टू द आर्मी दैट वाज सेंट बाय मुगल एम्परर. ओके, ठीक है ना. तो गाढ़ा कतंगा का जिक्र आपने गाढ़ा कतंगा के बारे में आपने पढ़ा होगा क्लास 7 के बुक में, ट्राइबल सोसाइटीज के बारे में. This is radically contrary to our image of Adivasis today as somewhat marginal. So एक समय में आदिवासी जो हैं, okay, they were the real inhabitants of the forest and they were the real masters having access to the forest. But in present scenario, we see that they are a marginalized community. And who is responsible for this? It is the governments, okay, द लॉज, द कॉलोनियल रूल. सबसे पहले तो ब्रिटिश शासन ने जो है उन्हें मार्जिनलाइज कर दिया, उनको उनके परिवेश से हटा दिया, रिजर्व फॉरेस्ट घोषित कर दिए. उसके बाद वो सारी चीजें जो है सरकार जो है उसको कैरी फॉरवर्ड करते गई. ओके, have a look, children. In the pre-colonial world, they were traditionally ranged hunter-gatherers and nomads and lived by shifting agriculture and also cultivating in one place. Although these remain for past 200 years, Adivasis have been increasingly forced through economic changes, forest policies, and political force applied by state and private industry to migrate to live as workers in plantations, at construction sites, in industries, and as domestic workers. Okay, when we went through the case story of Dadu, ओके और उन दो बच्चियों की जो है हेलेन और सोमा के बारे में जब हमने पढ़ा तो हमने देखा कि एक समय में जो 30 एकड़ जमीन के मालिक थे, ठीक है ना, उनको जो है काम के लिए दर दर भटकना पड़ा और नए सिरे से अपने जीवन को शुरू करना पड़ा.
For the first time in history, they do not control or have much direct access to the forest territories. Okay, so in present scenario, we can say, okay, in present times, the tribals have, okay, no access to forest resources. ठीक है ना? क्यों? क्योंकि सरकार ने जो है इन रिसोर्सेस को जो है गवर्नमेंट के अंडर में कर लिया है, ओके, और इन लोगों को जो है दे आर नॉट बीइंग अलाउड, दिस माउस बार बार हिल जा रहा है। Have a look children, यहाँ पे एक illustration दिया गया है, देखो, from 1830s onwards, Adivasis from Jharkhand and adjoining areas moved in large numbers to various plantations in India and the world. Mauritius, the Caribbean island, and even Australia. India's tea industry became possible with their labor in Assam. Today there are 70 lakh Adivasis in Assam alone. Okay, so what we see is there are 70 lakh आदिवासीज, ठीक है ना, आदिवासीज इन असम अलोन। तो हम देख रहे हैं कि असम जो है एक उत्तर पूर्वी राज्य है, ओके, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, और यहाँ पे 70 लाख की आबादी में जो है आदिवासी हैं, और ये सब जो है किसी न किसी प्रकार के कार्य में इन्वॉल्व हैं, ठीक है। द स्टोरी ऑफ दिस माइग्रेशन इज फुल ऑफ एक्सट्रीम हार्डशिप, टॉर्चर, हार्ट ब्रेक एंड डेथ. फॉर एग्जाम्पल, इन द 19th century alone, 5 lakh आदिवासीज had perished in these migrations. ओके, वो लुप्त हो गए, वो गायब हो गए, ओके, कहाँ गए, ओके, उनका क्या हुआ, उनके साथ क्या आप बीती, nobody knows. The song below captures the hopes of the migrants and the reality they faced in Assam. यहाँ पे जो है, ओके, जो मिडल मैन होते हैं, ठीक है ना, जो बिचवनी के रूप में जो काम आते हैं, फ्रंट में आते हैं, जो मिडल मैन होते हैं, वो कहते हैं कि हम आपको जो है रोजगार देंगे, आपको हमारे शर्तों के अनुसार चलना होगा। अभी भी आप देखेंगे बहुत सारे कंसल्टेंसीज है, ओके, बहुत सारे कंसल्टेंसीज हैं जो आपको प्रॉमिस करते हैं कि दे विल प्रोवाइड यू जॉब, एंड आपको एक रजिस्ट्रेशन चार्ज देना होता है, कोई 200 लेता है, कोई 500। उसके बाद जब आपको जॉब वो लोग ऑफर करते हैं, देयर इज 100% अश्योरेंस दैट यू विल गेट द जॉब, एंड व्हाट दे डू इज फर्स्ट मंथ की सैलरी जो होती है वो रख लेते हैं, ओके, वो अपना चार्ज ले लेते हैं, फर्स्ट मंथ की सैलरी आपको नहीं मिलेगी, वो खुद रख लेंगे। इफ यू अग्री तब वो आपको जॉब दिलाएंगे, नहीं तो नहीं दिलाएंगे। अभी ऐसे बहुत सारे कंसल्टेंसीज चल रहे हैं। One such consultancy is in Balia, okay, केसरा कंसल्टेंसी है शायद ये, ठीक है ना, ओके, सो दिस कंसल्टेंसी इज देयर। See, come Mini, let's go to Assam. Our country has so much suffering. The country of Assam, oh Mini, has tea gardens full of greenery. ठीक है ना, तो एक व्यक्ति अपनी बच्ची से कह रहा है, बच्ची, उसकी बच्ची का नाम मिनी है, और वो उसे कह रहा है कि चलो हम लोग असम चले, ठीक है ना। पहले एक राज्य से दूसरे राज्य में जब हम लोग जाते थे तो उसको देश कहा जाता था, आपने हिस्ट्री के बुक में पढ़ा होगा, ओके, परदेसी किसे कहा जाता था, अजनबी किसे कहा जाता था, जो दूसरे गांव को बिलोंग करता था उसको परदेसी या अजनबी कहा जाता था, ठीक है ना। द कंट्री ऑफ असम, ओ मिनी, हैज टी गार्डन्स फुल ऑफ ग्रीनरी। तो असम जो है, ओके, असम जो देश है वहां पे हरे भरे जो है चाय के बागान है, चलो हम लोग वहां चलते हैं। The Sardar says work, work. The Babu says catch and bring them in. The Sahib says, I will take off your skin, off the skin of your back. Hey Jadu Ram, you deceived us by sending us to Assam. तो जब तक आप कहीं नहीं गए रहते हो तब तक आपको वो क्षेत्र जो है बहुत ही अच्छा लगता है। हिंदी में एक कहावत भी है, दूर का ढोल सुहावन लगता है, ठीक है ना। तो जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं उनको शहर के चकाचौंध जो है बहुत ही प्रभावित करते हैं, बहुत ही आकर्षित करते हैं, और वो सोचते हैं कि अगर हम वहां जाएंगे तो हमारी जीवन शैली बदल जाएगी, हम लोग अमीर हो जाएंगे, लाइफस्टाइल बदल जाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं होता है, ओके। जब रियलिटी से आप फेस करते हैं आपके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। यहाँ पे देखो, ये लोग जब नहीं गए रहे होते हैं आसाम, तब तक आसाम इनको बहुत ही लुभावना लग रहा होता है, लेकिन जब वहां जाते हैं, रियलिटी से सामना होता है, ओके, तब देखो ये क्या कह रहे हैं। जादूराम वो मिडलमैन है जो इनको काम दिलाया है, ओके। और जब आप टी गार्डन्स में काम करते हो ना, टी गार्डन्स में जो है 3 प्रकार के जो है क्लासेस होते हैं। जो वर्किंग क्लास होता है, ओके,
सबसे पहला जो होता है वो बाबू होता है, मतलब जो मालिक होता है, ठीक है ना, ओके, उसको साहेब कहते हैं, ओके। और उसके नीचे जो होता है, जो है नहीं, आई एम कंफ्यूज, द ओनर ऑफ द टी गार्डन इज कॉल्ड द बाबू। बाबू के नीचे जो वर्क जो मैनेजर्स होते हैं, फील्ड मैनेजर, फैक्ट्री मैनेजर, उसको साहेब कहते हैं। और साहेब के नीचे होते हैं, ठीक है, सरदार लोग, ठीक है ना, लेबरों के जो लीडर होते हैं उनको सरदार कहा जाता है। तो देखो, जो लोग काम नहीं करते हैं उनको जो है सरदार लोग क्या करते हैं, उनकी गलत रिपोर्टिंग जो है, या जो लोग ड्रिंक करके आते हैं उनकी जो है, ठीक है ना, रिपोर्टिंग कर देते हैं वो साहेब को। और साहेब इसको जो है ऊपर की तरफ भेजते हैं, मैनेजमेंट में भेजते हैं। और देखो, वहां से जो है ये प्रक्रिया शुरू होती है, इनको जो है टॉर्चर शुरू हो जाता है। देखो, सरदार सेज वर्क वर्क, तो ये लेबरों का जो लीडर है वो कह रहा है काम करो काम करो। द बाबू सेज कैच एंड ब्रिंग देम इन, ओके। तो बाबू कहते हैं कि इनको पकड़ के ले आओ, ओके। और साहेब कहते हैं क्या, मैं तुम्हारा जो है शरीर से जो है चमड़ा मैं निकाल दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये कह रहा है ये व्यक्ति, वो अपनी व्यथा जो है प्रस्तुत कर रहा है, और वो कह रहा है कि जादूराम तुमने हमें चीट किया, डिसीव किया, मतलब तुमने हमें चीट किया, धोखा दे दिया, ओके, हमें असम भेज के तुमने धोखा दे दिया। So this is the, what do you think this poem is trying to convey? क्या होगा इसका आंसर बताओ? What will be the answer? What do you think this poem is trying to convey? Huh? Tell me the answer. The poem is trying to convey? Huh? बोलो. This has got entangled with this. Tell me, children, what will be the answer to this? What is the poem trying to convey? The poem is trying to convey the hardships faced by the tribals, okay, working on tea plantations, ठीक है ना। तो जो ट्राइबल्स जो हैं, चाय के जो प्लांटेशंस हैं वहां पे काम करते हैं, ओके, उनको किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उस चीज को जो है ये कविता जो है वो व्यक्त। The poem is trying to convey the hardships faced by tribals working on tea plantations. Okay, so this is it. This is the poem. Now let us move forward. Page number 86. Have a look, children. Forest lands have been cleared for timber and to get land for agriculture and industry. Okay, Adivasis have also lived in areas that are rich in minerals and other natural resources. दो छोटा नागपुर प्लेटो रीजन जो है, ओके, और डेक्कन प्लेटो रीजन, ठीक है ना, ये हमारे फिजिकल डिविजन्स हैं. दीज आर द मेजर फिजिकल डिविजन्स ऑफ आवर कंट्री, ओके. एंड वी सी दैट द छोटा नागपुर प्लेटो रीजन एंड द डेक्कन प्लेटो, both they are rich in mineral deposits, okay. छोटा नागपुर, ठीक है ना, प्लेटो रीजन एंड द डेक्कन प्लेटो. सी, ये खनिज में जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में जो है खनिज पाए जाते हैं. प्लेटो रीजन आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स. एज सच व्हाट वी सी, यहाँ पे जो है खदान बहुत पाए जाएंगे, आपको देखेंगे कि बहुत सारे खदान यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, ओके. नाउ सी चिल्ड्रन, Adivasis have lived in areas that are rich in minerals and other natural resources. These are taken over for mining and other large industrial projects. Powerful forces have often colluded to take over tribal land. Much of the time, the land is taken away forcibly and procedures are not followed. According to official figures, ठीक है ना, तो जो सरकारी जो दस्तावेज हैं उसके अनुसार हम क्या देख रहे हैं? According to official figures, what we see? We see that 50% of persons displaced due to mines and mining projects are, okay, 50% of persons, ठीक है ना, displaced
डिस्प्लेस्ड का मतलब एक जगह से दूसरी जगह हटा देना, ओके। डिस्प्लेस्ड ड्यू टू माइनिंग, ठीक है ना, खदान की वजह से, और ये खदान से संबंधित, डिस्प्लेस्ड ड्यू टू, ओके, माइंस एंड माइनिंग प्रोजेक्ट्स। माइंस का मतलब खदान होता है, ओके, और माइनिंग का मतलब होता है खदान खोदना। माइनिंग प्रोजेक्ट्स, ओके, आर ट्राइबल्स। तो आदिवासी जो हैं 50%, जितने भी संख्या में जो लोग हैं, ठीक है ना, उसमें 50% जो लोग एक जगह से दूसरे जगह जिनको स्थानांतरित किया जाता है या जिनको, ओके, काम से निकाल दिया जाता है, उनमें हम देख सकते हैं कि ये आदिवासी हैं, ओके। यहाँ पे एक उदाहरण भी दिया गया है, देखो, सी दिस इज अ फोटो ऑफ नियामगिरी हिल लोकेटेड इन कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। ये नियामगिरी जो पर्वत है वहाँ का जो है ये दृश्य है, और यहाँ पे जो है सरकार, जो उड़ीसा की सरकार जो है, देखो, द एरिया इज इनहेबिटेड बाय द दोंगारिया खोंद एन आदिवासी कम्युनिटी, ठीक है ना। तो दोंगारिया खोंद जो है ये क्या है, ये एक ट्राइब है, ठीक है ना, ओके। दोंगारिया खोंस आर अ मेंबर्स ऑफ द खोंस, दोंगारिया खोंस आर मेंबर्स ऑफ द खोंद ट्राइब, ठीक है, मेंबर्स ऑफ खोंद फैमिली, ठीक है ना, या खोंद ट्राइब। आप देखो इनका ये जो नाम है, ये नाम कैसे पड़ा, ये जो डोंगारिया नाम जो है इनका, डोंगारिया, जो डोंगार शब्द जो होता है उसका मतलब होता है एग्रीकल्चरल लैंड, ओके। द वर्ड डोंगार मीन्स व्हाट, एग्रीकल्चरल लैंड ऑन हिल स्लोप्स। जो ऊंची पर्वतों में जो खेती वाले जो जमीन होते हैं उनको जो है डोंगार कहा जाता है। तो उन क्षेत्रों के जो निवासी हैं उनको डोंगारिया कहा जाता है, ओके। सो वी कैन राइट हियर डोंगारिया or dongar is a term used for agricultural land, agricultural land on hill slopes, okay। इसी से जो है इनका नाम जो है ये पड़ता है, ओके। डोंगारिया ट्राइब का नाम जो है इसी से पड़ रहा है, जो पर्वतों पे जो खेती वाले जो जमीन होते हैं उसी से इनका नाम पड़ रहा है डोंगारिया, ठीक है ना। और इनका जो भाषा है, ये जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, दे यूज कुई लैंग्वेज, ठीक है ना, दे यूज कुई लैंग्वेज। इनकी जो भाषा है उसका नाम कुई है, ओके। और इस भाषा का प्रयोग खाली बोलने के लिए किया जाता है, ना तो इसकी कोई लिपि है, ना इस भाषा में वो लोग लिखते हैं, ओके, और ना ही कुछ रिटन रिकॉर्ड है, बस इस भाषा में वो लोग वार्तालाप करते हैं, स्पोकन। दिस लैंग्वेज इज यूज्ड ओनली फॉर स्पीकिंग, नॉट फॉर राइटिंग, ओके। नाउ व्हाट वी सी इज, और ये लोग जो है नियाम राजा, ठीक है ना, ये लोग किसकी पूजा करते हैं, दे वर्शिप द नियाम राजा। अब ये नियाम राजा कौन है, ठीक है ना, ओके। नियाम राजा जो है ये भगवान है, सुप्रीम गॉड ऑफ द नियामगिरी हिल्स, ठीक है ना। ये जो नियामगिरी पर्वत है उसकी जो राजा है, जैसे कि आपको पता है, ओके, आप लोगों को पता है कि जो ट्राइबल्स होते हैं वो एंसेस्ट्रल स्पिरिट्स को जो है वो वर्शिप करते हैं, ठीक है ना। नियामगिरी वो लोग एंसेस्ट्रल स्पिरिट्स को वर्शिप करते हैं, माउंटेन स्पिरिट्स को वर्शिप करते हैं, रिवर स्पिरिट्स को वर्शिप करते हैं, ओके। 38 बच्चे जुड़े हैं, मैं इनका स्क्रीनशॉट ले चुकी हूँ, इससे ज्यादा बच्चों का मैं अटेंडेंस लगाऊंगी नहीं, तुम लोग देख लो, ओके। ओनली 38 स्टूडेंट्स आई कैन सी ऑन द screen. Rest students I'm not going to mark the attendance, you see people. When I used to take the class in the morning, the strength of the students used to be 72, 75. Now the strength is decreasing, okay। And जिस हिसाब से आप देख रहे हैं कि okay, the way the COVID situation, now listen children, ओके। देखो यहाँ पे, वो तो ओपी सर के पास जाऊंगी मैं, लेटेस्ट अपडेट निकालूंगी, पता चल जाएगा।
हैव अ लुक चिल्ड्रन, सी। तो ये देखो, ये जो डोंगारिया खोन ट्राइब है, इसके साथ क्या हुआ। ये जो डोंगारिया खोन ट्राइब जो है, इसका जो जन्म भूमि जो थी वो नियामगिरी पर्वत थी, ठीक है ना। और ये लोग वहीं पे रहते थे, और नियामगिरी जंगल के जो देवता है, ठीक है ना, उन्हीं को जो है ये पूजा करते थे, जिनको ये लोग नियम राजा कहते हैं। ओके। अब यहाँ पे क्या होता है, उड़ीसा की सरकार जो है वो एक जो है स्टेरलाइट इंडस्ट्रीज 1997 में जो है, ओके, स्टेरलाइट इंडस्ट्रीज के साथ जो है वो क्या कर लेती है, ओके, स्टेरलाइट इंडस्ट्रीज के साथ जो है वो टाई अप कर लेती है, वहां पे एक एल्युमिनियम फैक्ट्री स्थापित करने के लिए। मैं लिख देती हूँ, आई एम राइटिंग इट, ओके। अब कैसे कैसे जो है यहाँ पे जो है इनके साथ क्या हो रहा है, और आगे चल के जो है उड़ीसा की सरकार को जो है सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश देती है, वो आप इस चीज में समझेंगे। देखो, इन 1997 स्टेरलाइट इंडस्ट्रीज, ओके, स्टेरलाइट इंडस्ट्रीज अ पार्ट ऑफ, ये किसका किस समूह का हिस्सा है, अ पार्ट ऑफ वेदांता रिसोर्सेज ग्रुप, ठीक है ना। ये वेदांता रिसोर्सेज ग्रुप का जो है एक हिस्सा है, ठीक है ना। ओके, पुट फॉरवर्ड अ प्रपोजल। मैम 1947 है। 1997 है बेटा, ओके। पुट फॉरवर्ड प्रपोजल टू कंस्ट्रक्ट व्हाट, टू कंस्ट्रक्ट एन अल्युमिनियम रिफाइनरी, टू कंस्ट्रक्ट एन अल्युमिनियम रिफाइनरी। अब यहाँ पे जो है एक अल्युमिनियम का जो है वो रिफाइनरी जो है वो सेटअप करना चाहते हैं, और इसके लिए जो है उड़ीसा की सरकार जो है वहां से, उड़ीसा की सरकार से वो लोग अनुमति लेते हैं, ठीक है ना। ओके। और उसी के आसपास जो है, ठीक है ना, नियामगिरी पर्वत से वो क्या निकालना चाहते हैं, नियामगिरी पर्वत में जो है वो खदान तैयार करके जो है वहां से बॉक्साइट लेना चाहते हैं। यू नो, बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम, आई होप यू नो, ओके। Yes, ma'am. बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। तो वो लोग Yes, ma'am. इस रिफाइनरी के लिए जो है उनको पर्याप्त मात्रा में जो है नियामगिरी पर्वत से जो है उन्हें बॉक्साइट मिलने वाला था। तो इस रिफाइनरी के लिए जो है वो नियामगिरी पर्वत से जो है वहां पे एक खदान तैयार करना चाहते हैं, ताकि जो है वहां पे जो है वो लोग जो है आसानी से उनको बॉक्साइट मिल सके, और वो बॉक्साइट के लिए उनको ज्यादा दूर नहीं जाना पड़े, ठीक है ना। अब ये रिफाइनरी जो है कब खुलती है, द रिफाइनरी ओपनड इन 2006, ओके। 2006 में जो है ये रिफाइनरी जो है ये खुल जाती है, ओके। लेकिन खदान से संबंधित, माइनिंग से संबंधित जो कार्य है उस पे जो है रोक लग जाता है, ओके। बट माइनिंग डेवलपमेंट was stopped, okay, mining development was, okay, banned on legal grounds, ठीक है ना। तो लीगल ग्राउंड्स पे जो है, ओके, इस माइनिंग की जो, ठीक है ना, माइनिंग को जो है वहां की सरकार जो है वो रोक लगा देती है। क्यों? क्योंकि जब कभी भी आप खदान तैयार करते हैं तो आपको पर्यावरण से संबंधित जो भी नियम है उनका पालन करना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो रिफाइनरी है, जैसे ही ये खुलती है और उसके बाद जो है ये माइनिंग के लिए जाती है, तो माइनिंग की जो प्रक्रिया है उसको जो है रोक लगा दी जाती है उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि ये लोग एनवायरमेंट से रिलेटेड जो okay, the refinery opened in 2006, but mining development was held by legal action as it broke laws relating to environmental protection and local people rights। वहां के जो स्थानीय लोग थे उनके अधिकारों का हनन हो रहा था, ठीक है ना। इसीलिए जो है इसको ऊपर रोक लगा दी जाती है, और इसके अगेंस्ट में कुछ इंस्टीट्यूट्स आगे आते हैं। द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ओके, देखो, the Wildlife Institute of India, along with, okay, along with
सर्वाइवल इंटरनेशनल, सर्वाइवल इंटरनेशनल ये एक संस्था है, ठीक है ना, ओके, कैंपेन्ड अगेंस्ट इट, कैंपेन्ड अगेंस्ट इट, ठीक है ना। तो इसके खिलाफ जो है ये लोग कैंपेन शुरू कर देते हैं, इस खदान की जो प्रक्रिया है, ओके, उसके खिलाफ जो है ये लोग प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं। The Wildlife Institute of India along with Survival International campaigned against it. Against what? Against the mining development in the Nyamgiri Hills. Now what happens? See, अब इसके फेवर में जो है बहुत सारे महान हस्ती भी आगे आते हैं। अरुंधति रॉय का आपने नाम सुना होगा, ये हमारे भारत की एक लेखिका है, सुजाना अरुंधति रॉय। उनके द्वारा लिखी गई किताब का नाम क्या है? ओम, पता है? Anybody else? Girls? Any idea? The book written by Arundhati Roy. मैं बताऊं? बताओ हर्षित। हाँ, मैम, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। मैम, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इसको क्या मिला था? How was this? मम्मी, The god of small मैम things. ये नहीं पता। हाँ, it won the best Booker Prize, ठीक है ना। सुजाना, इनका पूरा नाम क्या है? देखो, अरुंधति राय का नाम जो है सुजाना है, सुजाना अरुंधति रॉय, ठीक है ना। सुजाना अरुंधति रॉय ने जो है एक किताब लिखी थी, इस किताब को मैंने खरीदा भी था, मैं खरीदी थी, सॉरी। नो मैम, लिंक नहीं आया है। नहीं आया है मैम लिंक। Okay, I will tell sir, he will send it. Okay, now see children, these are the people who came forward in favor of the Dongaria tribe and they wanted the government. Okay, ये जो डोंगारिया ट्राइब के जो लोग हैं, okay, डोंगारिया ट्राइब, okay, okay, reside in the Nyamgiri Hills. ओके, तो ये लोग उस पर्वत में ये लोग रहते थे एंड वेर 3000 इन नंबर, ठीक है ना। उनकी संख्या जो है 3000 थी उनकी संख्या, और ये सारे लोग जो हैं, ओके, वो ये वहां पे रह रहे थे। तो देखो, जब ये सारे लोग जो है विरोध प्रस्तुत करते हैं तो क्या होता है, देखो, माइनिंग जो है वो रोक दी जाती है 2010 में, जो है भारत की जो सरकार है, ठीक है ना। इतने सारे लोग जब इसका विरोध करने लगते हैं तो 2010 में जो है भारत की सरकार जो है माइनिंग को रोक देती है। 2013 में सुप्रीम कोर्ट जो है, ओके, उड़ीसा की सरकार को जो है वो ऑर्डर देती है, वो कहती है कि आप जो स्थानीय डोंगारिया ट्राइब के जो सदस्य हैं, ठीक है ना, आप उनके साथ सलाह मशवरा करिए और उनसे जो है एक निर्णय पे जो है आने का प्रयास करिए उनके सलाह के बाद। ओके, क्यों? फॉरेस्ट एक्ट 2006, फॉरेस्ट एक्ट 2006 के तहत अगर किसी ट्राइबल का आपने जमीन लिया है तो उस ट्राइबल को उसकी जमीन वापस मिलनी चाहिए। अगर इलीगल वे में या लीगल वे में भी आपने उसको खरीदा है तो उसको उसकी जमीन वापस मिलनी चाहिए। हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे फॉरेस्ट एक्ट 2006 के बारे में। ओके, तो सरकार सुप्रीम कोर्ट जब आदेश देती है, ओके, अंडर द डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अंडर द डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ओके, एससी ऑफ इंडिया में लिख दे रही हूँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ओके, उड़ीसा गवर्नमेंट was asked to consult, okay, 12 डोंगारिया विलेज काउंसिल्स, ठीक है ना। तो 12 जो गांव हैं, ठीक है ना, उनके साथ जो है सलाह मशवरा जो है करने को जो है सुप्रीम कोर्ट जो है इनको आदेश देती है। 12 डोंगारिया विलेज काउंसिल्स, ओके, all these councils they rejected, all these councils rejected the proposal, ठीक है ना। तो ये सारे काउंसिल्स एक साथ मीट करते हैं और ये जो प्रपोजल है खदान के डेवलपमेंट का, ओके, रिजेक्टेड द प्रपोजल ऑफ माइनिंग।
अब क्या होता है, अब सुप्रीम कोर्ट जो है इसके ऊपर जो है रोक लगा देती है। सुप्रीम कोर्ट जो है, अब सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय है, और अगर वो कोई फैसला दे देता है तो किसी की जो है हिम्मत नहीं है कि उसके फैसले के खिलाफ जाए, बिकॉज इट इज द फाइनल अथॉरिटी। Okay, Supreme Court is the final authority. So Supreme Court of India, it asks the, okay, under the direction of Supreme Court of India, the Odisha government was asked to consult the local tribes, and when the Odisha government consulted these tribes, 12 Dongaria village councils, they met with each other and they rejected the proposal of the Odisha government that mining activity should be continued in this area. अभी जो सरकार जो है, वहां की जो सरकार है, ओके, वो अपनी तरीके से जो है इस चीज को जो है वो कैरी फॉरवर्ड कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है, उसके बावजूद जो है वो माइनिंग एक्टिविटी को जो है अलाउ कर रही है वहां के जो स्थानीय जो कारखाने वाले हैं। यस बेटा। मैम हम लोग में अटेंडेंस का लिंक नहीं आया है। नहीं आया है? अच्छा ठीक है, मैं यहीं पे हूँ, 2 बजे तक मैं यहीं हूँ। ओके, आई विल सेंड द लिंक इन अनदर क्लास, मे बी सर इज बिजी। ओके, ठीक है ना, मे बी सर इज बिजी, दैट इज वाई। एक काम करती हूँ ना, अभी कितना समय बचा है, 2 मिनट बचा है ना, मैं लिख लेती हूँ, आप लोग का नाम ही कहीं लिख लेती हूँ। जितने लोग, ओम कुमार सिंह। चुप कर, ये तो सबसे पहले रहता।